Good morning students. Today we will learn expanded form of the decimal. So already you know the places of decimal. Once again I have drawn the places of decimal. So you can see this decimal, this side, right hand side, after immediately decimal first place is tens, then again right side it is hundreds, then thousands, and this side left hand side as usual which you have learnt in your previous class, ones, tens, hundreds. Now this box I have drawn this place value so that I can explain what's it for, to keep this value here, this number here, and I can explain you in better way. So first question is, question number 1 is, fill in the blanks. First one is done for you, 17.25. So we have to tell 2 is in the dash place. So 17.2 is in which place? After decimal first place is tens. So similarly 1b I have solved. This is 892.416. So question is 4 is in which place? So 4 is in, this 4 is in which place? Tens place. So we will write TENTH. So this you will fill in your book. Now question number 2. So similarly you can fill, you will draw in your rough copy or in any page, you draw this chart and you write this number on this chart, and after that if you will find the places, that will be better. Now question number 2, complete each of the following. The first one is done for you. How they have expanded, you can see 10, what is 19, how we can expand the 19, 10 plus 9, because already this you know in your previous class, this 19 expansion will be 10 plus 9. Now this year after decimal how we will expand? 8 is there, so 8 is in which place? Tenth place. So 8 upon 10. 9 is in which place? Hundreds place. So 9 upon 100. And 2 is in which place? Thousands place. So 2 upon 1000. So similarly I have solved one question. Question number 2b. So I have written this here first of all on place value chart, and after that I am expanding as per this way, because expansion is two ways. One is question number 2. In this way also we can expand, and this way also we can expand. So there are two ways for expansion of the number. So first way is this one, question number 2 form. So this 1 is in which place? Tens place. So 1 will become 10. This 1 will become 10. 5 is in ones place. So 5 1 is 5 only. 2 will be divided by 10 because this is in tenth place. जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड जाएंगे डिवाइड करते जाएंगे एक एक जीरो एक्स्ट्रा, और डेसिमल से लेफ्ट साइड में एक एक जीरो मल्टीप्लाई करते जाएंगे. पहले ये वंस प्लेस रहेगा तो कोई मल्टीप्लाई बाई 1 रहेगा, फिर मल्टीप्लाई बाई 1 के बाद एक जीरो 10, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 100 2 जीरो आफ्टर 1. तो इधर क्या करना है? इधर डिवाइड करते जाना है. दिस साइड डिवाइड करते जाएंगे, 10 के बाद 100, एक एक जीरो बढ़ते जाएगा, 10 100 1000, और इधर क्या होते जाएगा? एक एक जीरो बढ़ते जाएगा. सबसे पहले 1 होगा, 1 के बाद 10, 10 के बाद 100, फिर 1000, 10,000, लाख, ऐसे. सो ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म. वन मोर एग्जांपल 2e. 2e में है 762.027. तो 7 इज इन विच प्लेस? 100 प्लेस. So this will become 700. 6 कौन से प्लेस में है? टेंस. So this will become 60. प्लेस वैल्यू ऑफ 6 is 60. यहाँ प्लेस वैल्यू को देखते जाना है. 7 का प्लेस वैल्यू 700 प्लस 60 प्लस 2 प्लस 0 का प्लेस वैल्यू क्या है? टेंथ प्लेस में, तो 0 अपॉन 10 हो जाएगा. अदरवाइज इफ यू विल नॉट राइट यू विल स्केप दिस, देन ऑल्सो इट्स ओके. सो 0 अपॉन 10 यू आर राइटिंग, देन दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इफ यू विल नॉट राइट, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, 0 अपॉन 10 मीन्स 0 ओनली, देन ऑल्सो इट्स ओके. 2 कौन से प्लेस में? हंड्रेड्स में है, तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, 2 अपॉन 100, 7 अपॉन 1000. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस फॉर्मेट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? राइट इन द एक्सपांडेड फॉर्म. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. इस फॉर्म में करना है, उसका वैल्यू जो है 9 10, वो जिस प्लेस में है उस प्लेस का ही नाम लिखना है.
मीन्स वी विल नॉट मल्टीप्लाई बाई दैट प्लेस वैल्यू। उसका वैल्यू से जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किए 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 110 ही लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखो, ये है 14, दिस इज द डेसिमल है 14.657। सो हाउ वी विल राइट दिस? 14 का ये 1 को कौन सा प्लेस में? टेंस। तो हम लोग वी हैव डन इस क्वेश्चन में क्या किए थे, 1 इंटू 10 10 हो गया था। इस क्वेश्चन में 1 के साथ टेंस, ये भी राइट है। आइदर 10 लिखो चाहे ये है 1 टेंस, दिस इज ऑल्सो राइट। सो ये और ये बोथ आर सेम। तो दिस इज वन काइंड ऑफ एक्सपांसन एंड दिस इज अनदर काइंड ऑफ एक्सपांसन। तो 1 टेंस ये कौन सी जगह पे है? 4 वंस, तो वी विल राइट 4 वंस। अदरवाइज 4 इंटू 1 भी होता है। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ 5 है तो कैसे आया 5 इंटू 1, तो 4 वंस, 4 इंटू 1 4, तो 4 वंस। 6 कौन से प्लेस में? टेंस, so 6 tens, 5 hundreds और 7 thousand. So this is the another way of expansion. So by similar way you can solve other also. Now question number 4, write the decimal form of each of the following. तो you will solve this question carefully. ये decimal form वाला ज़्यादा carefully solve करना है। There is chance of error, यहाँ पे escape हो जाता है तो error होगा। I will explain when the chance of error is there. So you see this question number B. क्वेश्चन है आपका 70 + 3 + 9/10 + 8/1000 है, इज इक्वल टू व्हाट? तो 77 कौन से प्लेस में है? टेंस प्लेस में। तो ये 7 हो गया, 3 वंस है तो दिस इज 3 ओनली। देन इमीडिएटली डेसिमल लगाएंगे, आफ्टर वंस प्लेस डेसिमल कम्स। देखो वंस के बाद डेसिमल लगा दिए। 9 कौन से प्लेस में है? टेंस, तो इमीडिएटली 9 विल बी रिटेन। आफ्टर दैट हियर टेक केयर, 8/1000 है, मतलब 8 का व्हाट इज द प्लेस वैल्यू? 8 इज इन थाउजेंड्स प्लेस, तो ये वाला प्लेस यहाँ मिसिंग है। आफ्टर 10 सीधा 1000 है, तो हियर 0 विल कम। तो 73.9 ये वाला 9 और यहाँ पे हंड्रेड्स वाला प्लेस मिसिंग है, तो 0 विल कम एंड देन 8 विल कम। तो यू डोंट राइट 73.98 मत लिखना, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि 8 आपका यदि इफ़ यू राइट 73.98 तो 8 कौन सा प्लेस हुआ? टेंस, जो कि यहाँ नहीं है। 8 इज इन थाउजेंड्स प्लेस, so this will be wrong. So now see this question, 6 + 4/100, तो 6 कौन सा प्लेस है? वंस प्लस पॉइंट, आफ्टर दैट वंस प्लेस के बाद क्या आता है? दिस साइड टेंस प्लेस, तो टेंस तो है ही नहीं है, हियर नथिंग, दियर टेंस प्लेस है ही नहीं है, जैसे यहाँ था टेंस प्लेस। तो व्हाट विल बी इन द टेंस प्लेस? 0। व्हेन द नो प्लेस इज देयर देन वी राइट 0। फिर 4/100, क्योंकि 4 का 100 प्लेस में है तो यहाँ 4 आ जाएगा। इसके बाद अगला है 5/1000, so 5 is in 1000 place, so 6.045. So by this way you will solve this question, particular you will solve carefully. So your homework is worksheet number 4, all the questions, this question only you will solve in fair copy, otherwise this all you can solve in book. Question 1 to 4 ये तीनों क्वेश्चन को आपको बुक में ही सॉल्व करना है, नो नीड टू सॉल्व इन फेयर कॉपी, बस दिस ओनली यू सॉल्व इन नोटबुक। ओके।